Hey everyone, welcome to Taru Totes. मेरा नाम है प्रगति and this is the part 2 of chapter 6 paper boats, and in this video we will be doing the worksheet. Let's start. A part is answer the following. Question number 1 is what was Meena playing with? मीना किस चीज़ के साथ खेल रही थी? So we can answer Meena was playing with paper boats. Let's see the question number 2. Meena was angry. Why? मीना बहुत गुस्से में थी. क्यों? क्या हम बता सकते हैं why was Meena angry? Yes, we can. So our answer will be Meena was angry because she saw a naughty boy overturning her paper boats into the water. Question number 3 is how did Meena help the boy? मीना ने उस लड़की की कैसे हेल्प की? So our answer will be Meena helped the boy by teaching him how to fold and make paper boats. Now children, B part is think and answer. First is Meena made paper boats. What else can you make with paper? Discuss in small groups. Children, मीना ने पेपर की हेल्प से पेपर बोट्स बनाई थी. क्या आप बता सकते हो कि अगर आपके पास पेपर हो तो आप उससे क्या बनाओगे? Yes, the answer is very easy students. We can make aeroplanes, guns, lotus and frogs with the help of paper. So I wish you guys enjoy making the frogs, aeroplanes with the help of paper. So give it a try. Now second is what games do you play with your friends? Which one do you like the most and why? आप अपने दोस्तों के साथ कौन से गेम खेलते हो और उन सभी गेम में से आपका फेवरेट गेम कौन सा है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है और क्यों? So children, the question is for you. But let me tell you my answer. Children, I play hide and seek, basketball, badminton and hockey with my friends. And out of all the games, hide and seek is my favorite due to the thrill of hiding from the catcher. क्योंकि इसमें कैचर से छुपना होता है, जो हमें पकड़ने आ रहा है उससे छुपना होता है. Now let's see the C part, that is of true false. Number 1 is the boy thought it was fun to overturn paper boats. वो लड़का ये सोचता था कि पेपर बोट्स को पलट देना बहुत मज़े की बात है. तो इज़ इट ट्रू? येस, वी विल राइट ट्रू हेयर. नंबर 2 इज़ मीना रैन होम टू कंप्लेन अबाउट द बॉय. मीना दौड़कर अपने घर गई उस लड़के की शिकायत करने. इज़ इट ट्रू? नो, इट्स फॉल्स. नंबर 3 इज़ द बॉय डिड नॉट नो हाउ टू मेक पेपर बोट्स. उस लड़के को कागज़ से बोट बनाना नहीं आता था. तो इट इज़ ट्रू. नंबर 4 इज़ मीना हैड ओनली वाइट पेपर. मीना के पास सिर्फ वाइट पेपर थे. नो, मीना हैड कलरफुल पेपर्स. तो इट विल बी फॉल्स. नाउ चिल्ड्रन, लुक एट द पिक्चर्स. आपको इन पिक्चर्स को बहुत ध्यान से देखना है एंड यू हैव टू टेल द स्टोरी ऑफ मनीष सेव्स द आंट टू द क्लास. आपको बताना है कि मनीष ने कैसे इस आंट को बचाया, इस आंट को इस स्ट्रीम में बहने से बचाया. सो वी कैन फ्रेम अ स्टोरी लाइक मनीष अपने स्कूल की तरफ जा रहा था. मनीष वॉज गोइंग टू द स्कूल. उसने देखा कि एक चींटी पानी में डूब रही है. डूबना यानी कि ड्राउनिंग. ही सॉ एन आंट ड्राउनिंग इन द वाटर. उसके बाद उसने अपने बैग में से एक पेपर बोट निकाली और उसको पानी में डाला. He immediately took out a boat from his bag and put it in the water. आंट उस पेपर बोट पर बैठ गई और मनीष ने उस पेपर बोट को बाहर निकाल लिया. So we will say the ant sits on the boat. Then Manish took out the paper boat from the water and put it on the land. और उसको फिर उसने इस जमीन पर छोड़ दिया. तो this is how Manish saves the ant. Now let's move ahead. Here is the concept of pronoun. Children, observe this sentence carefully. Meena walked towards the stream near the bamboo bridge. She bent a little and launched a paper boat. If you observe carefully, हम देख सकते हैं यहाँ हमने she यूज़ किया है. क्या आप मुझे बता सकते हैं ये she किसके लिए यूज़ हुआ है? Yes, you are right. She is used for Meena. क्योंकि मीना एक गर्ल है तो for girl child we use she and for boy we use he. Children, why we use he and she? हम यूज़ क्यों करते हैं? ताकि रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स ना हो.
ताकि हम एक नाम को बार बार रिपीट ना करें। अगर हम यहाँ शी की जगह मीना यूज़ करें, सो आवर सेंटेंस विल बिकम मीना वॉक्ड टूवर्ड्स द स्ट्रीम नियर द बैम्बू ब्रिज, मीना बेंट अ लिटिल एंड लॉन्च्ड अ पेपर बोट। नाउ इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, सेइंग मीना अगेन एंड अगेन साउंड्स वियर्ड। मीना वर्ड को बार बार बोलना थोड़ा अजीब है, तो हमने इस मीना को रिप्लेस किया शी से। Similarly, in the second example, the boy jumped into the stream and pulled the boat out. He gave it to Meena. He यहाँ हमने यूज़ किया he for the boy. अगर हम यहाँ boy ही रिपीट करते तो हमारा सेंटेंस होता the boy gave it to Meena. Now, repeating the boy again and again sounds weird. तो हम रिपीटिशन से बचने के लिए या वर्ड्स को रिपीट ना करने के लिए हम ही और शी ऐसे ही प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। एनिमल्स के लिए हम इट यूज़ करते हैं, गर्ल के लिए हम शी यूज़ करते हैं, बॉय के लिए ही यूज़ करते हैं। और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो आप आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए हम देखते हैं ही और शी का यूज़। सो वी कैन सी हेयर, यहाँ एक गर्ल है तो हम शी यूज़ करेंगे और बॉय है तो ही यूज़ करेंगे। सो चिल्ड्रन, नाउ लेट्स फिल इन द ब्लैंक्स विद ही और शी। रानी लाइक्स प्लेइंग आउटसाइड। नाउ इफ वी से रानी लाइक्स फ्लाइंग काइट्स, थोड़ा अजीब होगा बार बार से रानी बोलना, तो वी विल से शी लाइक्स फ्लाइंग काइट। क्योंकि रानी एक लड़की है तो हम शी यूज़ करेंगे। साहिल हैज़ अ टॉप, what will come here? He plays with it every day. Durga is 5 years old. She is going to school. Ranjit goes to school regularly. He likes reading stories. Now children, I hope आपको he और she का कंसेप्ट समझ आया होगा और आपने समझा होगा कि he बॉयज़ के लिए यूज़ होता है और she गर्ल्स के लिए। और यूज़ किस लिए करते हैं? ताकि रिपीटेशन ना हो, हम एक ही वर्ड को, एक ही नाम को बार बार रिपीट ना करें, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह आते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं नाउन क्या होता है? यस चिल्ड्रन, नाउन होते हैं नेमिंग वर्ड्स, यानी कि किसी का नाम। द नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन, एनिमल और थिंग। रानी एक लड़की का नाम है, एक पर्सन का नाम है, तो इसको रिप्लेस करने के लिए हमने लिया शी, जो कि एक प्रोनाउन है। आई होप आप नाउन और प्रोनाउन का कंसेप्ट समझे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। नाउ लुक एट द पिक्चर। इस पिक्चर को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। राइट वेयर ईच थिंग इज, हमें बताना है हर एक चीज़ किस जगह पे है। एंड फॉर दिस वी हैव टू यूज़ द करेक्ट वर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द बैट इज on oblique under the bed. Children, these are prepositions. Children, जब हमें किसी भी चीज़ की पोजीशन बतानी हो किसी दूसरी चीज़ के टर्म में कि वो उसके ऊपर है, नीचे है, साइड में है, आगे है, पीछे है या किसी भी जगह है, तो हम यूज़ करते हैं प्रीपोजिशंस। तो कुछ प्रीपोजिशंस हैं ऑन, अंडर, इन और भी बहुत तरीके की होती है। इस चैप्टर में हमें इन 3 को पढ़ना है। तो चिल्ड्रन, ऑन का मतलब होता है ऊपर, अंडर का मतलब होता है नीचे, इन का मतलब होता है अंदर। सो लेट्स सी, द बैट इज डैश द बेड। ये बैट इस बेड के कहाँ है? तो हम देख सकते हैं ये बैट इस बेड के ऊपर है। तो क्योंकि ये बैट इस बेड के ऊपर है तो हम यहाँ बोलेंगे द बैट इज ऑन द बेड। नंबर 2 इज द बैग इज डैश द चेयर। जो बैग है वो चेयर पे कहाँ है? तो ये बैग चेयर के ऊपर है, तो अगेन वी विल से द बैग इज ऑन द चेयर। नंबर 3 इज द बॉल इज डैश द बॉक्स। सो वी कैन सी द बॉल इज इन द बॉक्स। ये बॉल इस डब्बे के अंदर है, सो वी विल राइट द बॉल इज इन द बॉक्स। नंबर 4 इज द कार इज डैश द टेबल। लेट्स सी, द कार इज अंडर द टेबल। ये कार इस टेबल के नीचे है। जब कोई सामान नीचे होता है तो अंडर यूज़ करते हैं, ऊपर होता है तो ऑन यूज़ करते हैं, अंदर होता है तो इन यूज़ करते हैं। सो वी विल से द कार इज ऑन द टेबल। नंबर 5 इज द बुक्स आर
डैश द शेल्व्स, हम देख सकते हैं ये किताबें अलमारी पर है, तो क्योंकि ये इस पर रखी है तो वी विल से द बुक्स आर ऑन द शेल्व्स. So children, here we have learned the concept of preposition. Now children, आपको अपने मिलियो से यूज़ करना है इन प्रीपोजिशन को. इसका मतलब होता है अपने सराउंडिंग्स की चीज़ें देखनी है. आपको अपनी क्लास में देखना है कि टेबल पर क्या रखा है. अगर टेबल के ऊपर है तो ऑन, ये किसी बॉक्स के अंदर है, किसी अलमीरा के अंदर बंद कोई चीज़ है तो इन, और किसी बेड के नीचे कोई सामान है या टेबल के नीचे कोई सामान है तो वी विल यूज़ अंडर. आई होप आपको प्रीपोजिशन का कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा. नाउ लेट्स ड्रॉ द रंगोली बाय यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स. तो चलिए बनाते हैं. दिस इज़ वेरी ट्रिकी स्टूडेंट्स. आई ऑलवेज ट्राई टू मेक आउट द बेस्ट. नाउ लेट्स जॉइन दीज लाइन्स and now let's use the blue pen. I guess we are doing it right, and yes, we made it. So children, you also have to draw the rangoli in the similar way. Now children, you have to write a few lines about the picture using the following clues. इन clues को यूज़ करते हुए हमें इस पिक्चर को ध्यान से ऑब्जर्व करते हुए कुछ लाइन्स लिखनी है. वी कैन सी यहाँ बहुत सारे बच्चे पार्क में आए हैं जो अलग अलग तरीके के झूलों पर झूल रहे हैं. पार्क ये जगह, चिल्ड्रन यानी कि बच्चे, प्लेइंग खेलना, सीसॉ बोलते हैं इस झूले को, स्विंग्स ये रहे, स्लाइड जहाँ पे ऐसे फिसलते हैं, इंजॉइंग यानी कि मस्ती करना, हैप्पी मतलब कि खुश. तो चलिए बनाते हैं सेंटेंसेस इन वर्ड्स का यूज़ करते हुए. नंबर 1 सेंटेंस विल बी द चिल्ड्रन आर प्लेइंग हैप्पीली इन द पार्क. Number 2 sentence will be they are playing on the swings, which means बच्चे झूलों पर खेल रहे हैं. Number 3 sentence will be they enjoy many swings like a seesaw, slides, etc. Now children, let's move ahead. Here the B part is solve the crossword puzzle. हमें इस puzzle को solve करना है जिसमें कि अक्रॉस होता है ये साइड से और डाउन यानी कि नीचे वाले वर्ड्स के हिंट हमें यहाँ दिए हुए हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अक्रॉस का हिंट है नंबर 2, अ राउंड ऑब्जेक्ट दैट स्पिन्स ऑन अ निडल. एक ऐसी गोल चीज़ जो कि एक निडल, एक सुई पे घूमती है. तो क्या हम बता सकते हैं नंबर 2 क्या है? यस, टॉप, TOP, टॉप. नंबर 3, एन ऑब्जेक्ट यूज टू हिट अ बॉल. एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको हम यूज़ करते हैं किसी बॉल को हिट करने के लिए. सो यस, इट्स अ बैट. नंबर 4 इज अ राउंड ग्लास बॉल यूज्ड फॉर प्लेइंग. एक ऐसी बॉल जो कांच की होती है जिसको खेलने के लिए यूज़ करते हैं. चिल्ड्रन, यू रिमेंबर द मार्बल्स? यस. नाउ चिल्ड्रन, लेट्स सी द डाउन वर्ड्स. अ गेम प्लेड यूजिंग अ बॉल एंड योर फुट. एक ऐसा गेम जिसमें कि एक बॉल यूज़ होती है और आपका एक पैर यूज़ होता है, उस गेम को बोलते हैं फुटबॉल. सो वी विल राइट FOOT फुट, BALL बॉल. नंबर 3 इज अ राउंड ऑब्जेक्ट यूज टू प्ले. एक गोल चीज़ जिसको खेलने के लिए यूज़ करते हैं. तो यस, इट्स अ बॉल. नंबर 5 इज अ सीट टाइड बाय रोप्स एंड विच मूव्स फ्रंट एंड बैक. चिल्ड्रन, एक ऐसी सीट जो रस्सी से बंधी होती है और जो आगे पीछे मूव करती है, तो वो होता है स्विंग यानी कि झूला. नाउ चिल्ड्रन, यू हैव टू टॉक टू योर एल्डर्स एट होम. और आपको उनसे पूछना है कि वो जब यंग थे यानी कि जब वो आपकी एज में थे तो कौन से गेम्स खेलते थे. आपको उनके गेम के तरीके को जानना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है एक छोटे ग्रुप में, और उनको साथ में खेलना भी है. नाउ चिल्ड्रन, लास्ट इज द सेल्फ असेसमेंट. ये असेसमेंट आपके खुद के लिए है, आपको खुद से करना है. With this children, we have seen the chapter 6 paper boats. I hope you enjoyed this chapter. You really liked it. And if you did, so do like, share and subscribe Taru Tots. मिलते हैं next video में. Till then, bye bye and take care.